पहली बार तो ये है कि इस बार फोकस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे यहाँ इस मंच पर आए हैं, लेकिन फोकस उनकी पर्सनल रिलेशनशिप या पेरेंट्स को ज़्यादा फोकस पे रख के, अगर किसी पेरेंट का दिल दुख रहा है तो उन पर कैमरा रख के, वो सारी चीज़ें हैं नहीं शो में. और साथ साथ इस शो में हम लोगों ने खास एक बात रखी है कि देयर इज़ काउंसलिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, वेयर उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल जॉय राइड. ये नहीं है कि इसके बाद आपके जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी हैं, वो सीधा नेक्स्ट सुपरस्टार सिंगर बनने वाली हैं. सो दैट हैज़ बिन टोल्ड टू देम कि ये एक सीखने का एक मंच है, एक सीखने का मौका है और एक मज़े लेने का ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हम गए थे, ऐसा हुआ था. तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, बट एन्जॉय दिस जर्नी. सो आई थिंक अगर वो एटीट्यूड रखेंगे तो इस जर्नी की हर क्षण वो एन्जॉय करेंगे. Sean, hi. Sudeshna from the Telegraph, Calcutta. This is your second season on The Voice India. Last time we saw you with Mika ji and Sunidhi, and you had a great chemistry going with the two of them. This time, हिमेश जी भी थे ना? जी, हिमेश जी हाँ, भी. उनके साथ भी कमाल chemistry. Yeah, of course. This time, among the three of you, what's the chemistry like? Who's the fun-loving one? Who's the competitive one? Given that you are fighting for the same set of kids. नहीं, of course, I mean, no offense to my last year's coaches, और बहुत मज़ा आया था पिछले साल. पहले के एक दो दिन भी नहीं, पहले के एक आध घंटे तक मैं उन्हें मिस कर रहा था, बार बार सोच रहा था कि यहाँ वो बैठी थी, यहाँ वो बैठे थे, यहाँ वो थे. लेकिन एक डेढ़ या शायद 2 घंटे at the most, I had completely forgotten about whatever happened last year, because the way एक तो शेखर and we go back many years and we've been friends much before we even became professionals. और नीति of course I've got to know her through the show, लेकिन बहुत ही एक honest और whole hearted approach है नीति का, जो बहुत मज़ा आता है. No holds bar, and we really थोड़ा सा उनको हम लोग रैग भी करते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है. And I'm really enjoying this, ये जो नई तिगड़ी बनी है, तो कुछ बिगड़ी नहीं है, बहुत सब कुछ सुधर गई है, बहुत मज़ा आ रहा है. So it's a lot of fun. Hi, I'm Renil from First Post. Here. Hi. Hi. So first of all, I want to congratulate Ion TV on getting one the best international shows to Indian television. That's a great job done. Thank you, Glenn. So, see, internationally, when we look at Voice or any other international show, it's very snappy, it's fast, it's quick, there's no drama. But then one problem that we usually see when it comes to Indian television, there's a bit of Rona Dona. If there's an elimination, there's a slow song playing in the background, all of that. But then what's different in Voice this season? I think, like you mentioned, even I have seen Voice of different countries like US, Australia. And I was waiting that when would Voice come to India, because we have great talent in our country. And now that we have The Voice in India, and the kids edition is coming on air for the first time. Well, we don't have any Rona Dhona because we have kids. We are being extremely sensitive. We have made it we have made it more fun and an experience for them. Like he said, it has to be a joyride. And whenever we are coaching the kids, it's more about the philosophy of the show is that we are here to experience something. We are here to make friends. We are here to enjoy together. And in the process of doing that, we learn some new songs. We'll learn some great songs and we'll perform them with our best of abilities. So that's the whole philosophy. And I think that's what the kids are reflecting on the show. And there are some instances where we have seen kids have broken down because they come with a lot of expectations and they travel all the way from, very far states or cities. So there have been instances, but then we have made sure that we have given them homework that you have to come prepared next year. So, left with a smile. And they have left with a smile and lots of sweets. Yeah. That's great. But how do you guys manage though? Because especially because it's kids, it's a more sensitive and fragile zone, right? So do you guys sort of prepare yourselves to... The thing is, the kids are very smart nowadays. Oh. Okay, they're very intelligent. And they've seen this happening on television, right? They've seen a lot of shows before. And what I personally feel is that they're here for fun.
They're here to have a good time. They're here to learn something. And at the same time, it's like, you know, when you have these 2-3 days, 2-3 months holidays, the kids join a summer camp. So this is like a monsoon camp for them. So yeah, so they're having a good time. The most important thing is the breakdown. It's a very natural thing. It's a very natural emotion. Whether if you get selected, some kid has broken down. But that's what the kid feels at that point. He doesn't believe, or she doesn't believe that they've been selected. But the thing is, here it's all about education. It's all about music. It's all about us coaching them, it's us training them to do better. And they're having fun. That's the most important thing. And the most important thing on the show for 3 of us is make sure that the kids are really comfortable, they're having a good time, and they learn a lot when they leave from here. Hi judges. Hi, this is Shongbetta. I just wanted to ask, अभी ट्रेलर में देखने को मिल रहा था कि कैसे एक ही बच्चे तीनों जजेस में चूज करने का उनको मौका मिल रहा है, तो उस दौरान आप लोगों में क्या नोक-झोंक होती है? आपने अभी देखा ही होगा, जब बच्चा कह रहा है कि मुझे सेंटर में देखना है, तो हम सब सेंटर आ जाते हैं, लेफ्ट आ जाते हैं. आई थिंक हियर द कॉन्सेप्ट इज सो यूनिक that we are selecting the kids, but they select the coach. So we are actually wooing the kids. We are actually, impressing them. हम national television पे अपने आप को बेच रहे हैं. Yeah, we बड़ी are नादान entertaining बच्चों them. को सब कुछ पहले से ही पता रहता है. मुझे कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि पहले से ही कहीं ना कहीं मन बनाकर आते हैं कि अगर तीनों जजेस मेरे लिए, तीनों कोचेस मेरे लिए बजर दबाते हैं तो फिर मैं शायद इनके पास. लेकिन ऐसा भी हुआ है, कहीं ने कहा है कि मैंने सोच कर आई थी, मुझे किसी ने बताते हुए ऐसा कहा कि मैं सोच कर आई थी आपकी टीम में आऊंगी, लेकिन मैं शेखर की टीम में जा रही हूँ. तो ऐसा भी हो जाता है कई बार. हम लोग They've been very blunt about it. It hurts. एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि नाम लिए शेखर, तो शेखर एक्चुअली चले गए स्टेज पर. I was very excited. I was very हाँ, happy. वो जाके हक करने गए, बोले नहीं शेखर सर, मैं कहना चाह रही थी कि मैं नीति मैडम को लेना चाहती हूँ. अरे तेरी तो ये बच्चे बहुत ही प्यारे हैं. This is a क्या very कहें? entertaining show. A very entertaining show. बहुत प्यारे. नीति, हेलो, हाय, हियर लेफ्ट. Hi. इसी से जुड़ा हुआ क्योंकि आपके आजू बाजू जो दोनों जजेस हैं वो जी. बहुत सारे कई बार जज की कुर्सी पर रह चुके हैं, आपका फर्स्ट टाइम है, तो क्या कंपटीशन इन लोगों से आपको ज्यादा मिली एक बच्चों को कन्विंस करने में? वेल मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं तो काफ़ी टिप्स ले रही थी दोनों से. और ये लोग थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी बेवकूफ़ी बनाते थे, आपको शो में दिखेगा. कभी कभी ये लोग मुझे रैग करते थे बिकॉज मैं फ्रेशर हूँ. एक होता है ना कॉलेज में, आप जब नए नए जाते हैं तो सीनियर्स रैग करते हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी बार मुझे रैग भी किया है. बट देन बच्चों ने जब मुझे सेलेक्ट कर लिया ओवर देम, तो ये लोग अपने आप फिर तो मेरे पॉइंट्स ऊपर हो जाते थे. सो बट आई टोटली लव्ड बीइंग विद देम. आई थिंक मुझे इससे अच्छे को जजेस नहीं मिल सकते थे, इससे अच्छे को कोचेस नहीं मिल सकते थे, बिकॉज दे हैव बीन सो सपोर्टिव. ये जो आप दृश्य देख रही थी ना अभी, हम दोनों माइक तो हाथ में है, सोच रहे हैं कुछ कहें कुछ करें, और नीति बोले जा रही बोली. ज्यादातर शो में ऐसा ही रहा. As a coach, I have to sell myself, and I will do anything to do that. गर्ल पावर अकेली है ना, तो मतलब शीज हम पे डबल है. एक नारी पड़ेगी इन पे भारी, तो वही मैंने किया है. ये सारी महिला संगठन. I'm Mamta from MTN News. यहाँ ईशान, जय बाबू से भी कुछ पूछिए. देखिए ये तो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, बच्चों के फैमिली से भी, तो इनको बेटर पता है कि बच्चों से तो हम फिर भी इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से जय और सुगंधा ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं. तो अगर पेरेंट्स वाली अगर कोई सवाल है आपके मन में, तो दे कैन आंसर यू बेटर. इस मामले में एक चीज कहना चाहता हूँ कि पता नहीं क्यों मम्मियों के सारे फेवरेट तो शानी है. मतलब जब मम्मी से पूछते नहीं हमें तो शानी पसंद है, क्यों? बस स्माइल अच्छे लगते हैं. मतलब उनके हस्बैंड की स्माइल उनको कभी पसंद ही नहीं आती, मतलब कीड़े पड़े होंगे उनके. मतलब इमेजिन ये हिंदुस्तान का कितना कमाल का ये फंडा है ना. अगर समझो औरतें बोल देती कि ना मुझे ये शान बहुत पसंद है, अभी यही चीज एक मर्द बोलते कि मुझे नीति बहुत पसंद है, घर पे जाके कितनी पिटाई होगी वो सोचो. ये एक खासियत है इस शो में. और कौन सा जेंडर मुझे पसंद करता है वो तो बताओ. नहीं, अगर औरत कहती है ना मुझे शेखर पसंद All the hot है, girls. तो शेखर का क्या है कि उसमें एक अलग अपील है ना, तो हस्बैंड इनसिक्योर हो जाता है थोड़ा सा. शान ठीक है, शान पसंद है, ठीक है. सुपर. I'm Hello, Mamta hello. from MTN Yeah. News. Ishan, tell me what is the USP of the show and parameters for judging the child? नहीं, एक तो जजिंग कम होता है, यहाँ कोचिंग ज़्यादा होता है. और जजिंग से ज़्यादा जब हम मतलब जो ऑडिशन होता है, जो ब्लाइंड ऑडिशन होता है, दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट
effective part of the show वर्ल्ड वाइड लोगों को ये ब्लाइंड ऑडिशन का राउंड इतना पसंद आता है और ये बहुत ही एक ऑनेस्ट तरीका है किसी आवाज़ को पहचानने की, क्योंकि आप उसकी ना आप चेहरा देख रहे हैं, ना उसकी मासूमियत, ना उनकी अदाएं, ना वो चीज़ें कहीं आपके नज़र के सामने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ के बलबूते पर आपको बजर दबाना है, उसे सिलेक्ट करना है। सो इट्स द मोस्ट ऑनेस्ट, द मोस्ट फुल प्रूफ वे टू चूज़ the voice as the name of the show goes, and इस डील में ही नयापन है, क्योंकि किसी और शो में ऐसा होता तो है नहीं। और उसके बाद सारे राउंड ऐसे ही हैं, भयंकर भयंकर, मतलब विचित्र विचित्र, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो इसलिए शो का फॉर्मेट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इट्स वेरी डिफरेंट। Jay, we have often seen you hosting shows single-handedly. So if you can tell something about your chemistry with Sugandha on this show. जाजा मैं फुकरे से बात नहीं करता, मजाक कर रहा हूँ। वैसे थैंक यू सो मच, झूठ नहीं बोलूँगा, इनको मैंने 50 रुपये टिप दिया था सवाल पूछने के लिए, जो थैंक यू सो मच। वैसे सुगंधा के साथ आप सब जानते हैं, शी इज़ अ फैंटास्टिक कॉमेडियन, बहुत सारी मस्ती करती रहती है, एंड ये शो में भी उसने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। एंड अब जो आगे, अभी तो हमने सिर्फ थोड़े बहुत एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, एंड उसके बाद जब और करेंगे तो उसमें और मज़ा आने वाला है सबको। एंड सुगंधा इज़ ऑलवेज हॉट फेवरेट व्हेन इट कम्स टू कमिंग अप विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड अलग अलग तरीके से ऑडिशंस में भी बहुत अलग अलग तरीके से ये आई है और बड़ा मज़ा आया। मतलब शी इज़ द मोस्ट चिल्ड आउट एंकर। अगर मुझे इस शो से पहले कोई पूछते थे कि सबसे फेवरेट को होस्ट कौन है, मैं शायद किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत मतलबी हूँ, लेकिन आफ्टर दिस शो आई वुड से दैट सुगंधा इज माय फेवरेट को होस्ट। जय, ऐसा नहीं लगता कि कोई मल्टी क्या बोलते हैं डिसऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं, क्या मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है नहीं, मैंने इसलिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की कि ये कल मुझे मेरे लिए भी कुछ बोले, लेकिन बोल रही नहीं है कुछ, क्या बोलूं अभी मैं, सोच रही किस आवाज में बोलूं। हाँ। जय के लिए आप वीरू की आवाज में कुछ कह दीजिए। जय के लिए वीरू की आवाज। हाँ हाँ हाँ। वीरू नहीं, इतना क्रिएटिव नहीं है, 4 आवाज आती है, उसमें से कोई एक बोलो। धर्मेंद्र। हाँ। But I know Sugandha as only one person. मैंने सारेगामा जज किया था, तो वहाँ Sugandha was the singer there, and she's a phenomenal singer. और उसके बाद मैंने उनसे मुलाकात हुई, तब मालूम पड़ा कि ये हाल है इनका, एंकरिंग कर रहे हैं। नहीं सर, शेखर सर मेंटर रह चुके हैं शो में, और सर अभी मतलब तुम चुप रहो, अच्छा ऐसे टीज मत करो मुझे। हाँ। तो नहीं तो सर जय आप कह रहे थे कि वीरू की आवाज में या धर्म जी की आवाज में, लेकिन एक्चुअली आई एम द क्वीन ऑफ बॉलीवुड, तो मैं सिर्फ अपनी ही आवाज में बोलती हूँ, मैं किसी और की आवाज कॉपी करती क्योंकि मुझे आता ही नहीं है यार। आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली वन एंड ओनली क्वीन ऑफ द बॉलीवुड, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है कॉपी करने की। तूने याद है तूने बैकस्टेज मुझसे सवाल पूछा था, याद है कि तू शो में किस लिए है? हाँ। इसीलिए आपके सारेगामा के मेंटोर को शक होने लगा है कि आप वही सुगंधा हो या कुछ हुआ आप गाती हो। तो 2 लाइन जरा गाकर भी सुना दीजिए हमें, जी सर, उन्हें और हम सबको, प्लीज प्लीज। सर माइक है नहीं, हाँ। अच्छा चलो ठीक है, फील बट ठीक है, ऐसे ही ना राइट्स का बहुत प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, डर लगता है गाने से पहले आजकल, इसका राइट नहीं है उसका है। हाँ। तो सर मैं वो सॉन्ग एक लाइन गा देती हूँ जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में जिससे आपने मुझे सिलेक्ट किया था। क्या बात है। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गए तो आगोश में वो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। क्या बात है यार, क्या बात है। अब सुगंधा वो गाना गाओ वो गाना गाने के बाद यही मेंटोर ने आपको शो से बाहर निकाला था। जी नहीं, अभी वो गाना भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। Jay, you are the only one left to sing. हाँ? Yes. Yeah, please, Jay, you have to sing. Jay, you have to sing. मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर? नहीं नहीं नहीं, चिल्ला, आपको लग रहा है बहुत एक्साइटमेंट है, सिर्फ वो एंडमॉल वाले लोग ही वो पुराने चावल ही चिल्ला रहे मेरे लिए, बाकी कोई नहीं है। देखिए
मैं आपको बता देता हूँ, मैं आजकल सुनने में आया कि हर कोई गाना गा रहा है। हाँ, आजकल सुनने में ऐसा है। एक सेकेंड, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इन चारों से, यानी कि हमारे मेंटोर्स और इनसे एकदम यूनिक हूँ। मतलब मैं मेहनत करके कभी भी अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, लेकिन ये मेहनत करके कभी मेरी तरह कभी नहीं गा सकते। ये एक यूनिक फैक्टर है मुझ में, यू नो, जो मुझे एकदम हटके रखता है ये शो से। हाँ बेटा गा दे, ऑटो ट्यूनर है हमारे पास। क्या? गा दे, ऑटो ट्यूनर है। मैं गाता नहीं हूँ, उस गाने पे हमेशा परफॉर्मेंस देता हूँ, और आप सब ने देखा ही होगा आज फिर तुम पे प्यारा है मैं कैसा परफॉर्मेंस दिया था मैंने। तो आज गा दो। मतलब हाँ? एक बार जब वो गाना हो गया तो इसे दोबारा खराब करके शूट करने की क्या जरूरत थी? उसमें कोई कसर क्योंकि थोड़ी वर्ड्स है बची। ना, आज फिर तुम पे प्यार आया, फिर एक बार। नहीं मैं बहुत बुरा हूँ यार, मैं चलिए, मुझे हम लोग एक ही फेयर है, मुझे एक्चुअली एक फोबिया है लाइफ का, जो शायद मैं कभी इसे निकाल नहीं पाऊंगा, एंड दैट्स सिंगिंग। मुझसे सिंगिंग नहीं हो पाती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंगिंग करने की कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं बन पाऊंगा, मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। चलो ठीक है, आपकी बात अब आते हैं वॉइस किड्स पे। हाँ। Yes, sir, my question is for 3 judges out there. Over here. Last. Can you see me? Yeah. No question. Yeah, Jay here. What's up? The question is like, you know, you said there won't be emotion, drama in the show. तो आपका TRP कैसे बढ़ेगा, sir? बच्चों के टैलेंट से, उनके सिंगिंग से बढ़ेगा। आप इमोशनल हेलो सर, जो भी जितने भी म्यूजिक शोज आए हैं ना, वो चले इसलिए है क्योंकि सिंगर्स अच्छा गाते हैं, बच्चे अच्छा गाते हैं। कौन कोचेस है, कौन जजेस है, कैसा शो है, इट्स ऑल गुड, एवरीवन डज देयर बेस्ट फॉर इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट विल स्पीक। और इस देश का टैलेंट जो है वो आपको बता देगा कि ये शो सबसे बेहतरीन शो है इस साल का। क्या बात है। नहीं, और सर साथ साथ हम कोई ऐसा दावा तो नहीं कर रहे कि हम इमोशनल नहीं हैं, हम बिल्कुल रोबो टाइप के हैं कि वेरी गुड आप मेरे टीम में आ जाओ। क्यों नहीं आओगे? आना ही पड़ेगा। नहीं आए कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं इमोशंस तो होंगी हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा नहीं कि उस इमोशन को लेकर हम उसको निचोड़ निचोड़ के क्यों रो रहे हो बेटा, थोड़ा सा और रो के दिखाओ, ओ बहुत बुरा लग रहा है मैं भी रो दूंगा, ऐसा नहीं होगा। व्हाटएवर होगा नेचुरल होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही था। और अगर कुछ ओवर द टॉप होता भी है तो बिलीव मी काट देते, दिखाते नहीं है।